Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for Mdcat, and today I am going to start our new topic, that is support and movement. And in today's lecture, I am going to discuss the basics of bone, cartilage and muscles. So let's move to the classboard. जी dear students, now let us start with bone first of all. तो सबसे पहले हम bone को start करेंगे. Bone को define करते हैं first of all. So bone, it's the hardest connective tissue that forms endoskeleton in the vertebrates especially. Dear students, connective tissue आपने पढ़ा हुआ है. Animals के अंदर 4 basic tissues होते हैं जिससे मिलकर तमाम animals की bodies बनती हैं. The muscular tissue and nervous tissue and the connective tissue and the epithelial tissue. और जो connective tissue है ये further आगे it is composed of इसकी जो types हैं मतलब कि it is blood, it has got blood and bone and cartilage and adipose tissue. तो उसमें से हम discuss कर रहे हैं bone को. So among the connective tissue, it is the hardest connective tissue in the body of an animal and it is especially present in the vertebrates. Clear? So चूंकि endoskeleton आमतौर पर होता ही vertebrates में, usually it is present in the vertebrates, so that is why it is present in the vertebrates. और अगर इसकी composition के एतबार से देखें bone की, so it consists of bone tissue, it consists of cartilage, it consists of fibrous connective tissue, and it consists of blood vessels, along with nerve tissue. It also has some nerves in the bone, and the bone cells. It consists of some bone cells, and the bone cells include, which will be discussed later, inshallah, the osteoblasts, osteoclasts, and the osteocytes and the osteoprogenitor cells. So these are the types of bone cells which are present in the bones. Clear? And along with these bone cells, there is also deposition of minerals. So the major mineral present in our bone is calcium phosphate. Clear? So it is important. So this is the mineral which is deposited in our bones especially. Clear? And let's here have some view of its parts. So this is a long bone. अच्छा dear students, इसको डिस्कस करने से पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन, और आपने सिलेबस में भी पढ़ा, क्योंकि बोन का टॉपिक चल रहा है, तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन डेफिनेटली smallest human bone is stapes, which is present in the middle ear, and the longest human bone, इंसान में सबसे लंबी हड्डी ये डियर स्टूडेंट्स कौन सी होती है? That is femur, or which is called as thigh bone. It is also called as thigh bone. Clear? Or now come towards the parts of the bone. ये हमारे बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये उनके हम उसके पार्ट्स को डिवाइड करते हैं. तो ये एंड्स हैं, ये 2 एंड्स, और दरमियान में शाफ्ट. ठीक है? जो एंड्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं थोड़े से. ठीक है? लाइक दिस एंड लाइक दिस, दे आर ब्रॉड. और दरमियान में जो पोर्शन होता है, जो मिडल पोर्शन होता है, ये थोड़ा इलोंगेटेड है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बोन, और मतलब ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली उस एंड्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा नैरो होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग बोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, and in the terminal portion again the epiphysis. So epiphysis, it is the terminal broad parts of long bones. जो broad terminal मतलब ends के ऊपर, this terminal, upper terminal and the lower terminal, तो जो broad ends जो मौजूद हैं, they are called as
द एपिफाइसिस। क्लियर? और यहां से लेकर दो एपिफाइसिस के दरमियान यानी इन टर्मिनल्स के दरमियान जो बोन का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस which is also called as shaft. So the shaft, which is the middle part of the bone along the length of the bone, जो middle part होता है between the two epiphyses, this is called as the diaphysis. Clear? तो ये important है MCQs के एतबार से what is epiphysis and what is diaphysis. अब इतने सी बोन को कट करके थोड़ा सा इसको बड़ा सा करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं. So let us have a longitudinal section of this bone. तो dear students, as you can see, bone के बाहर एक outer covering होती है. This one, we are starting from the outside. तो ये बाहर एक outer covering है. This one, जो आपको यहाँ पर yellowish यानी कलर में नजर आ रही है. This is called as periosteum. Peri means around, osteum means bone. तो पूरी bone के गिर्द चारों तरफ. This is a bone all around the bone. From top to bottom, there is a layer of connective tissue which is called as periosteum. और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये ही वो लेयर है जो कि सेंसिटिव होती है आमतौर पर से प्रेशर से, और इसके अंदर वो जो पेन से सेंसिटिव यही वो पोर्शन होता है. सो इन दिस लेयर द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. उसके नीचे देखेंगे तो बाकी इस पेरियोस्टियम के नीचे जो कुछ भी पड़ा हुआ है, ये बाहर समझे कि बोन का कवर है, ये सेंसरी कवर है, उसके नीचे असल में बोन है. तो बोन कहलाती है, इसके नीचे वाला पोर्शन कहलाता है एंडोस्टियम. इट इज कॉल्ड एज एंडोस्टियम. एंड मीन्स इनसाइड, सो इनसाइड द पेरियोस्टियम. सो द इनर रीजन बिलो द पेरियोस्टियम इज कॉल्ड एंडोस्टियम. इट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ, इसके दो पार्ट्स होते हैं. द पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ, कॉम्पैक्ट बोन एंड इनर बोन मैस कॉल्ड द स्पॉन्जी बोन. जो अंदर वाली साइड पे जो बोन मैस एक्चुअल वो कहलाता है स्पॉन्जी बोन. क्लियर? सो एंडोस्ट बाहर पेरियोस्टियम, उसके अंदर जो हड्डी मौजूद है वो असल में वही हड्डी है. ये उसके बाहर एक कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, सेंसरी लेयर है. सो ये बाहर उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्टियम. उसकी दो लेयर्स या दो पार्ट्स, जो पेरिफेरल द कॉम्पैक्ट बोन, ये रही कॉम्पैक्ट बोन, और ये अंदर वाली साइड पे यहां से थोड़ा सा काट के देखा है दैट इज द स्पॉन्जी बोन. तो आइए अब कंपेयर करते हैं द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पॉन्जी बोन. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले कॉम्पैक्ट बोन बाहर से हम शुरू हुए थे, तो बाहर से ही पहले आउटर साइड पे मूव करते हैं. एंडोस्टियम की जो पेरिफेरल लेयर है, सो इट इज द आउटर हार्ड लेयर ऑफ एंडोस्टियम, और पेरिफेरल लेयर नीचे मेंशन्ड है, इट इज पेरिफेरल. पेरिफेरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से हटके जो बोन का हिस्सा वो कहलाता है पेरिफेरल. क्लियर? सो द पेरिफेरल लेयर, द आउटर हार्ड, इट इज वेरी हार्ड, इट इज डेंस एंड लेयर ऑफ द एंडोस्टियम. इट प्रोवाइड्स, इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मसल्स. मतलब ओरिजिन और इंसर्शन, जो मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन वो आउटर पार्ट पे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो they provide attachment to the muscles. Clear? And also to the tendons and ligaments, and takes part in joint formation. जो इसके ends होते हैं, ये epiphyseal जो portion होता है, that is involved in the formation of joints as well. So that is the function of compact bone. काफी हार्ड है. असल में जो स्ट्रेंथ होती है बोन की, जो हार्डनेस की हम बात करते हैं, वो इस कॉम्पैक्ट बोन की वजह से ही होती है. बहुत टाइटली डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद है. अब आते हैं इसके अंदर वाले साइड पे. ये देखिए आपको कितनी एयर स्पेसेस नजर आ रही हैं थोड़ी सी, ठीक है, और रेड हिस्सा नजर आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जी बोन. दिस इज द स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्ज देखिए घर में बर्तन धोने वाली डिश वॉशर. सो उसमें वो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं. उसी तरह से जैसे वो नरम होती है, इसी तरह से ये अंदर वाली जो लेयर है इस बोन की, जो अंदर या इनर लेयर, दैट इज सॉफ्ट. ठीक है, इट हैज एयर स्पेसेस बिटवीन देम. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से सॉफ्ट है, ये ज्यादा डेंस नहीं है. क्लियर? सो द इनर स्पॉन्जी लेयर ऑफ द एंडोस्टियम इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जी बोन. द हैव द बोन मैरो. इसके अंदर क्या मौजूद है? इसी के अंदर मौजूद है ये बोन मैरो. ये रेड आपको जो नजर आ रहा है ना इसमें, सो ये रेड बोन मैरो है. दिस इज रेड बोन मैरो. एंड ब्लड वेसल्स
इसी के अंदर ये देखिए पेनिट्रेटेड हैं, these are the blood vessels and which are involved in hematopoiesis. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पॉन्जी बोन है इसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज इट एज इट कंसिस्ट ऑफ द बोन मैरो. सो बोन मैरो के होने के नाते इसका जो असल मकसद है दैट इज हेमाटोपोइसिस. हेमाटोपोइसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम most of the blood cells they are formed inside this inside the bones or within the bone marrow. क्योंकि bone marrow के अंदर होते हैं hematopoietic stem cells जो कि आगे डिफरेंशिएट होकर के बनाते हैं मुख्तलिफ तरह के हमारे ब्लड सेल्स. क्लियर? सो उसके प्रोसेस को, ब्लड सेल्स के बनने के प्रोसेस को कहते हैं हेमाटोपोइसिस. ही मीन्स ब्लड. क्लियर? पोइसिस. सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. चलें अब अंदर आए तो देखें ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं अंदर की तरफ जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी लेके आएंगे क्योंकि ये टिश्यू है और यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किया जाएंगे. यहाँ पर ब्लड सेल्स की जो मूवमेंट है उसको जो है वो देखा जाएगा. जो यहाँ पर नए बन रहे हैं वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएंगे. यहाँ पर ये वाला रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेड बोन मैरो. ये ऊपर वाला ये स्पॉन्जी जो ब्रॉड एंड यानी एपिफाजियल एंड पे मौजूद है, इस जगह पे जो बोन मैरो मौजूद है यूजुअली इट इज द रेड मैरो. रेड मैरो भी कहते हैं इसको या रेड बोन मैरो भी कहते हैं. सो रेड बोन मैरो इट इज फाउंड इन स्पेसिस ऑफ स्पॉन्जी बोन. ये देखें स्पेसिस के अंदर मौजूद है, यू कैन लुक इट वेरी वेल. सो दे एंड दिस काइंड ऑफ बोन मैरो इज एक्टिव फॉर हेमाटोपोइसिस. यही वो बोन मैरो है जो कि हेमाटोपोइसिस में हिस्सा लेगी, मतलब कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी. और दूसरे यहाँ पर देखें ये आपको येलो कलर की जो नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज येलो मैरो और येलो बोन मैरो. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि रेड मैरो एक्टिव है, येलो मैरो ये इनएक्टिव होती है. जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी तमाम बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स, वो सारे एक्टिव होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड सेल्स. लेकिन उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जैसे वो खाना शुरू होता है अपने बिहाफ के ऊपर और फिर उसमें चर्बी भी आ जाती है, मतलब कि इन द डाइट द फैट्स आर इंक्लूडेड, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं ये जो इस बोन मैरो के ऊपर जो है उसके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है. और ये फैट्स के ऊपर चढ़ जाने की वजह से ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द फैट्स और द लिपिड्स इट बिकम्स इनएक्टिव. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज येलो मैरो. येलो मैरो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसका कलर येलो है. इसको रेड मैरो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट्स कलर इज रेड. सो हम इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में भी मार्क कर सकते हैं. इट इज रेड इन कलर while the yellow marrow it is yellow in color. Clear? So yellow marrow कहां पर मिल रही है? ये देखिए यहां से नीचे वो shaft स्टार्ट हो रही है, shaft, और जिसको हम diaphysis कह रहे हैं. So it is found in the shaft or diaphysis in the central cavity. दरमियान में एक कैविटी होती है, एक स्पेस होती है. It is also called as medullary cavity. तो इस सेंट्रल कैविटी के अंदर मौजूद है ये येलो मैरो. इट इज इनएक्टिव, याद रखिएगा, इट इज इनएक्टिव ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स. तो दो तरह की हमारे पास बोन मैरो है, येलो मैरो एंड रेड मैरो, बट द एक्टिव इज रेड मैरो. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जरूरत पड़ने पर इस येलो मैरो को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू एक्टिव फॉर्म मींस रेड मैरो. जैसे कि इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स, जहाँ पर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उस सूरत में जो थोड़ा जल्दी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवानी होती है, तो दिस इज़ नॉट इनफ इन दैट वेरी केसेस टू फॉर द प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस. तो उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है कि जो येलो मैरो है इसको कन्वर्ट करती है इनटू रेड मैरो और ये भी स्टार्ट कर देती है इरेथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है. Now, dear students, the bone cells. So we are now discussing the types of bone cells which the bones possess. So there are 4 different categories of cells which are involved in the formation of bone. So first one are the osteogenic cells, or they are also known as osteoprogenitor cells. Or in simple,
So these are the bone stem cells. स्टेम सेल्स वो होते हैं जो जहां से बाकी सारे सेल्स डिफरेंशिएट होकर के बनते रहते हैं, ठीक है। लाइक इन ब्लड सेल्स हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जिनको प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, उससे बाकी सारे वाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स एंड रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। इसी तरह से बोन्स के अंदर भी कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, उनको ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहते हैं। और ये ऑस्टियोजेनिक सेल ये मोनोन्यूक्लिएटेड है और इट विल डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें प्लीज, ठीक है। ऑस्टियोजेनिक सेल इट विल डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट में डेवलप हो चुकी है। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं दे फॉर्म द बोन मैट्रिक्स। एमसीक्यू के लिए इसको मार्क कर लीजिए। The cells which are involved in the formation of bone matrix, there are the osteoblasts. Dear students, चले इससे हटकर एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करता चलूँ, शेयर करता चलूँ, एकदम से माइंड में आ गई। बॉडी के अंदर हम एक मुख्तलिफ तरह से सेल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के बिहाफ के ऊपर और इसके बिहाफ के ऊपर हम सेल्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ब्लास्ट और एक साइट। So cells, they are either blast और साइट्स। जिसके साथ ही ब्लास्ट लगता है दैट इज इमेच्योर सेल, और जिसके साथ साइट लगेगा दैट इज अ मैच्योर सेल। Like erythroblast, it is an immature cell, and erythrocyte is a mature red blood cell. Clear? So इसी तरह से जो osteoblast, osteo means bone, तो ये immature bone cells हैं और यही इन्वॉल्व होंगे आगे चल के बोन का मैट्रिक्स बनाने में। So they are mononucleated, that is the nucleus. That is the nucleus. So they are mononucleated cells. They produce matrix. They produce the matrix mainly composed of collagen fibers. ज्यादातर ये डिपॉजिट करवाते हैं कोलेजन फाइबर्स को, और कोलेजन फाइबर्स खास तौर पर जो टाइप 1 कोलेजन है उसको ये जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसमें पैक करेंगे। दे आर नोन एज द बोन फॉर्मिंग सेल्स। एमसीक्यू, दे सिंथेसाइज एंड सेक्रीट, इंपॉर्टेंट चीज है ये, दे सिंथेसाइज बनाते हैं एंड सेक्रीट रिलीज करते हैं अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस। अनमिनरलाइज्ड का मतलब जिसमें अभी कैल्शियम और फॉस्फेट ऐड नहीं हुई, ये सिंथेसाइज करते हैं और सेक्रेट करते हैं। क्लियर? एंड दे आर आल्सो नोन एज इमेच्योर बोन सेल्स। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये अपने इर्द गिर्द जो है वो मिनरलाइजेशन स्टार्ट कर देता है। जब ये मिनरलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, so now it will be called as osteocyte. So this osteoblast will convert into osteocyte. So osteocytes, the entrapped osteoblasts in bone matrix. ऐसे osteoblast जो bone matrix में ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जैसे ये बनते हैं दे स्टार्ट फॉर्मिंग ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस के इर्द गिर्द in the periphery of these branches they start secreting the minerals, मतलब के calcium and phosphates and other minerals, especially the calcium and phosphate. जब ये अपने इर्द गिर्द इन मिनरल्स को फंसा लेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो खुद फंस जाएंगे, अब ये यहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये entrapped osteoblast in the bone matrix is called as osteocyte. Clear? And इनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से देखिए, इनके फंक्शंस के एतबार से देखिए। So they maintain the bone tissue, बोन टिश्यू को मेंटेन करवाते हैं। दे रेगुलेट मिनरल होमोस्टेसिस, हड्डियों में कितनी बोन चाहिए, कितनी कैल्शियम चाहिए, कितनी फॉस्फेट चाहिए, बाकी सारी चीज़ें कितनी चाहिए, वो सारा इन्हीं का रेगुलेशन इनके हाथ में है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योर बोन सेल्स, मैच्योर बोन सेल्स। क्लियर? क्योंकि इसके साथ वर्ड क्या लगे, साइट। एंड दे जनरेट मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स। तो मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, और बाकी जो मिनरल्स होते हैं इसमें वो मौजूद हैं, बट प्राइमरली द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सो दे जनरेट मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स। इसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर रहे हैं। ऑस्टियोब्लास्ट दे जनरेट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस, while the osteocytes they generate the mineralized matrix or the ground substance. They have many extensions
आप देख सकते हैं ये बहुत सारी एक्सटेंशन है इसकी, इधर 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 उधर, इन ऑल डायरेक्शंस। और इसका मकसद कि इसके आसपास वाले जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं या जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सके। सो दीज आर फॉर द कम्युनिकेशन। ये जो एक्सटेंशंस हैं, दीज आर द एक्सटेंशंस, दे आर फॉर कम्युनिकेशन। And another function of the osteocytes is they maintain bone and calcium. ये हमारी हड्डियों को बनाए रखती है, उसको मेंटेन करती है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी मैस को, और साथ में कैल्शियम को। क्लियर? तो ब्लड के अंदर और के जो इस बोन के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करती है। They regulate bones response to stress and mechanical load. ज्यादा वजन उठाने पर हड्डियों में दर्द होना या स्ट्रेस की कंडीशन में पेन होना हड्डियों के अंदर, सो दैट इज ड्यू टू दिस ऑस्टियोसाइट्स, ये इनकी रेगुलेशन करवाती हैं। दे रेगुलेट कैल्शियम रिलीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लें एमसीक्यूज के लिए। दे रेगुलेट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन्स टू द ब्लड। जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल करेगा बिलो नॉर्मल जब फॉल करेगा तो ऐसी कंडीशन में रिलीज होगा पैराथॉर्मोन, यू नो। सो पैराथॉर्मोन क्या करेगा कि इन हड्डियों में से कैल्शियम को निकलवाएगा फ्रॉम द, और इस सारे प्रोसेस में ऑस्टियोसाइट्स को हेल्प कर रहे होंगे। तो निकाल के हड्डियों से जो इसकी फैक्ट्री थी जहाँ पर डिपॉजिट करवाई गई थी कैल्शियम, वहाँ से निकलवा के और वो बोन ब्लड में शामिल की जाएगी, ताकि जहाँ पर इसकी ज़रूरत है फॉर स्पेशली फॉर मसल कंट्रैक्शन वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाए। सो ये इसकी एक्सटेंशंस, दीज आर नोन एज एक्सटेंशंस, या इनको प्रोसेसेस भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसेस, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, एंड दीज आर द मिनरल्स जो कि यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, और ये इसको ट्रैप कर देंगे अब, ठीक है। और नाउ द ओस्टियोक्लास्ट, so they are large in size and they are multinucleated, as you can see these are nuclei, clear? So they are large in size as compared to them, and they're multinucleated. इनका function resorption of bone, जिसको हम कहते हैं bone resorption, वो कैसे करवाई जाती है? Bone tissue की resorption by removing the mineralized matrix, उसको रिमूव करेंगे mineralized matrix को, and breaking up the organic bone. याद है आपको रिपेयर ऑफ बोन, उसमें जब वो बोनी कैलस बन जाती है तो उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लग जाता है, वो बोनी मटेरियल, तो उसको अलाइन करने के लिए, मतलब कि उसको बिल्कुल जैसे वो नई थी, उसको एक्स्ट्रा मटेरियल को तोड़ने के लिए वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट को पहुँचाया जाता है। और इसमें जो तोड़ने का प्रोसेस है, उस ऑर्गेनिक बोन को जो एक्स्ट्रा होती है, दैट एक्स्ट्रा मटेरियल जो लग जाता है, उसे कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। मिक्स डिसॉल्व हो जाना या उसको खत्म कर देना, सो दैट इज रिजॉर्प्शन। द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, दे आर आल्सो नोन एज बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, एंड द मैक्रोफेजेस इन देयर फंक्शन। मैक्रोफेजेस स्टूडेंट्स आपको पता है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने पढ़ा था। मैक्रोफेज जब मोनोसाइट्स 10 से 20 घंटे रहने के बाद, ब्लड में रहने के बाद वो टिश्यूज में चले जाते हैं, वहाँ पर दे कोइल्स और दे फ्यूज टू फॉर्म लार्ज सेल्स विच आर कॉल्ड एज द मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो बड़े पार्टिकल्स को दे फैगोसाइटोस द लार्ज पार्टिकल्स, उन लार्ज पार्टिकल्स को खा जाते हैं, उनको फैगोसाइटोसिस करते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स वो स्मॉल पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसी तरह से इनका जो फंक्शन है, डियर स्टूडेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रक्चर, rather we are discussing the function. In functional ability or in the functional capacity, the macrophages of the white blood cells, they resemble these osteoclasts in function, because these bone cells are also involved in the phagocytic activity. Clear? तो इनकी phagocytic activity की वजह से, मतलब कि जो एक्स्ट्रा बोन सेल्स उनको बॉडी से रिमूव कर देना और डिसॉल्व कर देना, सो दैट इज देयर फंक्शन। मोर इंपॉर्टेंट दे आर, यानी कि जो मैक्रोफेजेस हैं, दे आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ग्रोथ। जब बच्चा शुरू में बनता है तो आपको पता है उसमें सॉफ्ट बोन्स बनते हैं जिनको कार्टिलेजेस कहा जाता है, और फिर उन कार्टिलेजेस की जगह पे आहिस्ता आहिस्ता, बच्चा भी माँ के पेट में ही है,
इनिशियली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट बोन जिसको कार्टिलेज कहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, वहाँ से उस कार्टिलेज को रिमूव करते जाते हैं और वहाँ पर बोन सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट एंड द ऑस्टियोसाइट्स and the collagen fibers, they along with each other they form the skeleton and they deposit. एक तो क्या स्टूडेंट्स ग्रोथ के वजह से, दूसरा रिपेयर ऑफ बोन। तो रिपेयर ऑफ बोन में भी इन ऑस्टियोक्लास्ट का अच्छा खासा रोल है। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट द एक्स्ट्रा मटेरियल जो जब हड्डी जुड़ती है तो बाहर जो एक्स्ट्रा मटेरियल लग जाता है उसको ख़त्म करना, यानी कि रीमॉडलिंग जो चौथा स्टेप है वो इससे ऑस्टियोक्लास्ट से स्पेशली रिलेटेड है। And here is the diagram of this macrophages having the macrophages functional capacity, that is the osteoclast. And one more thing, that the osteoclast they deposit calcium and phosphate into the blood. ये खून के अंदर शामिल करते हैं जरूरत पड़ने पर, not always and not unnecessarily, but upon the needs of the body. Now, dear students, the second part of the subtopic 2.12.1, that is cartilage. So, cartilage, it is a type of connective tissue. As I have told you before, it is a type of connective tissue. It is harder, but it is less harder than a bone because bone is the hardest connective tissue. Clear? ये भी hard है, लेकिन bone से थोड़ी less hard होती है. So, type of connective tissue that is strong but less strong or hard than bones. They are present at particular places only. बॉडी में हर जगह पे मौजूद नहीं है कार्टिलेज, ये सिर्फ मखसूस जगहों पे मौजूद है। They are flexible, a little bit flexible, इनके अंदर flexibility अल्लाह ताला ने रखी है। They have no blood vessels. जो कार्टिलेजेस हैं they are devoid of blood vessels. तो ब्लड वेसल्स नहीं है तो क्या ख्याल है फिर इनमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह ये कैसे पहुंचता है? सो द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। जब ये सारा कुछ नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, सो दे ऑल द थिंग्स दे मूव अलोंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड दैट इज द रीजन दे हील वेरी स्लोली। इसी वजह से चूंकि ब्लड वेसल्स नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स इतनी आसानी से यहाँ पहुँच नहीं पाते, तो डिफ्यूजन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। सो दैट इज वाई अगर कार्टिलेज खराब हो जाए तो बहुत देर लेती है उसको हील होने में। सो हियर इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टिलेज। सो देयर इज एन अपर कनेक्टिव लेयर टिश्यू layer of around the cartilage, clear? So it is a layer of connective tissue which is called as perichondrium. Peri means around and chondrium means around the cartilage. So the cartilage matrix is covered by dense connective tissue. जो कार्टिलेज का अंदर जो मैट्रिक्स है वो किससे कवर्ड है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के साथ। इट इज कवर्ड बाय डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। CT स्टैंड्स फॉर हियर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकॉन्ट्रियम। ये ऊपर भी पेरिकॉन्ट्रियम, नीचे भी पेरिकॉन्ट्रियम और दरमियान में क्या है उसका? मैट्रिक्स। सो ऑल दिस इज द मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं देयर आर कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स दे आर द लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। याद रखिएगा, दे आर द लिविंग सेल्स ऑफ द cartilage or mature cartilage cells. So they are also known as mature cartilage cells. Clear? Or they are present in a fluid filled space. ये छोटे छोटे ये gaps होते हैं जिनके अंदर ये मौजूद है। So that is called as lacuna. उन स्पेसेस को कहा जाता है लैक्यूना। देयर इज अ फ्लूइड फील्ड स्पेस इन व्हिच द कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। ये इसके इर्द गिर्द जो है वो स्पेस है, इसके जो छोटे गैप्स है इनको लैक्यूना कहा जाता है। दीज आर फ्लूइड फील्ड, इनके अंदर मौजूद है ये आपको जो पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर? और ये इनके इर्द गिर्द इन एडिशन टू लैक्यूना देयर आर सम फाइबर्स, एज यू कैन सी ये ब्लू कलर के जो नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल द इलास्टिक फाइबर्स। दीज आर elastic fibers. So that is a little bit structure of the cartilage. Now the cartilage, it is divided into three major categories. So three major categories involve hyaline cartilage, fibrous cartilage and elastic cartilage.
तो इसको मैं टैबुलेटेड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि इसको आपको कंपैरेटिव स्टडी में आसानी रहे। क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो भी टॉपिक आप कंपैरिजन की फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं, एक तो जल्दी याद हो जाता है, एक उसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेहतर क्लियर होते हैं और आसानी से उसको रिकॉल भी किया जा सकता है क्योंकि एक इमेज बना होता है इस तरह से। Now, here are the features, and these are the types of cartilage: hyaline, fibrous, and elastic. So, for the first point is their abundance. Abundance मतलब कि कौन बॉडी में कौन सी कार्टिलेज की जो टाइप है वो ज्यादा मौजूद है हमारे अंदर। So, hyaline cartilage it's the most abundant cartilage of human beings. Clear? And हमारे अंदर सबसे ज्यादा abundant, ज्यादा तादाद में पाई जाती है। और फाइब्रस भी मौजूद है, अबंडेंट है, बट इलास्टिक इट इज वेरी लेस, मतलब कि इसकी क्वांटिटी इन तीनों में सबसे कम है अबंडेंस के एतबार से। बट मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इज हेलाइन कार्टिलेज। इसी तरह से एमसीक्यू बन गया आपका। इफ यू टॉक अबाउट द मैट्रिक्स कलर, इनके जो मैट्रिक्स होता है उसका रंग किस तरह से होता है। सो इन केस ऑफ हेलाइन कार्टिलेज इट इज ब्लूइश वाइट एंड समवट ट्रांसपेरेंट, जैसे आपको ये ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। So bluish white or transparent it's the color of the hairline cartilage. But as far as the fibrous cartilage is concerned, they are dark yellow in color, strong yellow, dark yellow. ठीक है, जैसे कि वो फैट्स का चर्बी होती है इस तरह से, strong yellow color, dark yellow color. And the elastic cartilage, their matrix color is yellow or white. It is yellow or white. If you talk about the structure, the hyaline cartilage it consists of chondroblasts. तो chondroblast immature cartilage cells कहलाते हैं and white collagens, और इसके अंदर क्या मौजूद है, white collagen fibers मौजूद हैं। और fibrous ये थोड़ी टफ है और रफ एंड टफ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स इस एतबार से इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स की तादाद ज्यादा होती है। क्लियर? और इलास्टिक जो कार्टिलेज है इससे नेट लाइक टिश्यू होगा। अगर if it is examined under a proper light microscope, so the elastic cartilage it will appear like a net of tissue. Net of tissue means कि इधर से जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा हुआ, एक नेट की अपीयरेंस आ रही है। If we talk about their functions, कि इनके functions क्या हैं इन cartilages के, so let us have a look. So hairline cartilage it is involved in movement. Movement में किस तरह से, क्योंकि ये bones की जो एंड्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स की जो एंड्स होते हैं वहां पर ये मौजूद होती है हेलाइन कार्टिलेज। तो इस तरह से मूवमेंट में हेल्प कर रही है। इट इन बोन ग्रोथ इट इज आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन। फंक्शन इसका कि हमारा जो कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक है टू कीप इट ओपन, इसको हर वक्त खोले रखना। यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलेजेस हैं, फिर ब्रोंकाई के अंदर मौजूद है, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में खत्म हो जाती है। ठीक है, सो इनका मकसद दैट इज प्रोटेक्शन, ताकि अगर हम बेहोश भी हो जाएं या जब सो रहे हों तो हमारा जो एयर वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ से ट्रेकिया से स्टार्ट होकर के नीचे तक जो है ब्रोंकाई तक स्पेशली ये ब्रांचेस दी हैं विच आर कॉल्ड एज द हेलाइन कार्टिलेज। क्लियर? द टाइप ऑफ द कार्टिलेज। नाउ द फाइब्रस। सो फाइब्रस कार्टिलेज ये इसका मेजर रोल सपोर्ट में, ये हमारी आम तौर पर हमारी जो कमर होती है, मतलब कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, आवर स्पाइन, उसके अंदर मौजूद है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इट हैज द एबिलिटी टू बियर और टू एब्जॉर्ब द शॉक। हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे जो यहाँ से लेकर पेल्विस से लेकर ऊपर जितना भी हमारा धड़ है, हमारी पूरी बॉडी है, इसका सब इस पूरी बॉडी का वेट हमारी बैकबोन पे होता है, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं। तो जब हम मूव करते हैं तो ये इस तरह से सपोर्ट एक दे रही है और शॉक एब्जॉर्बेंस। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द शॉक। आपको याद है वो द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हियर इज एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आउटर फाइब्रस रिंग होता है उसमें, और उसके सेंटर में मौजूद है बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस
पल्पोसस, और ये बाहर जो रिंग्स हैं दे आर कॉल्ड एज द एनुलस फाइब्रोसस। क्लियर? सो इस तरह से ये सॉफ्ट सा बॉल है, जब हम मूव करते हैं तो ये बॉल ऐसे कंप्रेस होता है, और ये बाहर जो रिंग है ये जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कह रहे हैं, या एनुलर रिंग भी कहते हैं इसको। सो ये रिंग जो इसको अंदर सपोर्ट करके रखेगा। खैर, सो सपोर्ट प्लस शॉक एब्जॉर्बर्स प्लस प्रोटेक्शन है। सो इट इज ऑल्सो protecting us from various injuries as well. And if you talk about the elastic tissue, it is a little bit flexible. It also helps in the support. Clear? ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह इस पे नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स कम है, इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा मौजूद हैं इसमें, जिसके भी हाफ के ऊपर ये इसके अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। नाउ अनदर heading is there, that's a location where these all these cartilages are present. So if you talk about the hairline cartilage, it is present at the ends of long bones, the bronchi, in the larynx, and the tips of the waist and ribs. तो वहां पर मौजूद है hairline cartilage. Like here is a bone. So its end has got these structures which are called hairline cartilage. Okay? So this is how the ends of long bones and bronchi and larynx, उसको मैंने explain कर दिया, ठीक है? And the ribs आगे sternum से आगे आकर attach होती है with the help of this hairline cartilage. ये important है हमसे याद रखना है, ठीक है? The ribs. So here is the sternum, and here is a few, just for the sake of example. So here is a rib. It is attached to the sternum. So this is sternum, और ये है actually the hairline cartilage. Clear? And now, if you talk about the fibrous cartilage, so it is present in the bones, in the joints, and the knee joints, and especially in the backbone. यहाँ पर मौजूद है. Clear? The fibrous cartilage. And if you talk about the elastic cartilage, so here is the diagram. Vertebra, and again a vertebra having intervertebral disc. Okay, so this is intervertebral disc. Clear? So it is made up of the fibrous tissue or the fibrous cartilage. Now the elastic cartilage, it is present in the pinnae of ear and epiglottis. So जो हम कहते हैं ना कान पकड़ूं आपका कान खींचूं, वो जो कान हम खींचते हैं actually it is just the it's the part of external ear. तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। तो एक्सटर्नल ईयर का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज पिना। इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एज वेल एज द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद है, एक ओपनिंग है छोटी सी एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंक्स, और इसका काम क्या होता है एपिग्लॉटिस का? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉलिड फूड और द लिक्विड फूड इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इसलिए वो बार बार चीज़ें आएंगी, ऐसे नीचे प्रेस होगा वापस आ जाएगा, फिर प्रेस होगा फिर वापस आ जाएगा। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। Nowadays, students, there is a little bit comparison between bone and cartilage. So here are some features which I have used for the comparison.
the features of the bone and the cartilage in a comparative fashion. So first of all, collagen. So if we talk about the collagen, means the collagen fibers in bone, they are densely packed, tightly packed. So that is why it is very strong. And cartilage, they are the collagen fibers, they are loosely packed. So that is why it is a little bit soft and flexible. The type of the cells, the bone have three different types of cells, namely osteoblast, osteoclast, and osteocytes. While the cartilage, they have only one type of cells, only and only the chondrocytes, the mature cartilage cells. Osteoblast, the bone-forming cells. Osteocytes, the mature bone cells. Osteoclast, the bone-dissolving cells. Clear? Osteoclast. Now, if we talk about the blood vessels, so the bone has blood vessels in them, as we have seen, but in cartilage, they are devoid of blood vessels. Here, if we talk about the minerals, so in bones, there is a deposition of various minerals like calcium, like phosphate, like carbonate. But in case of cartilage, there is no deposition of minerals. And if we talk about the outer covering, so the bone's outer covering is called periosteum, while in case of cartilage, it is called as perichondrium, around the chondrium, around the cartilage and around the bone. If we talk about the flexibility, so bones are usually not flexible, while if we talk about the cartilage, so they are usually flexible. And if we talk about the strength, so bone is more stronger than the cartilage and cartilage is less stronger than the bones. Now, dear students, we are going to discuss the myology, the muscles. So, myology, it is the branch of biology which deals with the study of muscles. So, dear students, muscle, you know, it is a tissue, or this tissue has the ability, a specialized tissue which has the ability to contract and relax. ये contract कर सकता है, relax कर सकता है, मतलब elongate हो सकता है, वापस सुकड़ भी सकता है. So this is the ability, special ability of this tissue, the muscular tissue. And you know very well that the fibers which are included in these muscles, they are made up of certain proteins, which are actin, myosin, tropomyosin, and troponin. So, but the most abundant proteins among the muscles, they are actin and myosin. So, हम आगे चलकर उसको देखते हैं, इंशाल्लाह जब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे. So, here, first of all, muscles, there are three types on the basis of their location, the smooth muscles, the smooth myocyte, and cardiomyocyte, the cardiac muscle, and the skeletal muscle, which is or the skeletal muscle fibers. Clear? तो आइए चलते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. कंपैरेटिव ये टेबल चैप्टर नंबर 16 में दिया क्या है, एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एंटी टेस्ट. एंड वैसे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द मसल अपीयरेंस, मतलब दिखने में मसल कैसा दिखता है. सो द स्मूथ मसल्स, इनको कहा ही स्मूथ इसलिए जा रहा है बिकॉज दे हैव स्मूथ अपीयरेंस. Clear? When you visualize them in the microscope, so they appear smooth. There are no striations. इनमें कोई धारियां नजर नहीं आती. So here we go. ये देखें, ये smooth muscle. इसमें किसी किस्म का आपको कोई इस तरह से strips या striations नजर नहीं आ रही. That is the reason it is called as the smooth muscle. अच्छा, smooth muscle के हवाले से याद रखिएगा, ये it is the earliest form of muscle. मार्क कर लीजिए. मैं इसी का ये पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ. ठीक है, इसको इसके साथ शेप के साथ, इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स. मतलब कि ये एक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है. इट इज एन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दैट दुनिया में जितने भी एनिमल्स आए, उनमें सबसे पहला मसल जो अपीयर होता है, दैट इज द
स्मूथ मसल एंड इट इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम एनिमेलिया में अगर कोई मसल कंसिस्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, और शुरू के जो ऑर्गेनिजम्स थे अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, आई बिलीव इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, बट हेयर चूंकि वो हमारी बुक के अंदर ये वर्डिंग मौजूद है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल और द प्रिमिटिव मसल भी कह सकते हैं उसको, और द मसल ऑफ द एंसेस्टर्स, व्हाट एवर यू से। सो चूंकि ये पूरे किंगडम एनिमेलिया में चल रहा है, ये इनवर्टिब्रेट्स में भी मौजूद है, वर्टिब्रेट्स में भी मौजूद है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल, द स्मूथ मसल। Now, if we talk about the cardiac muscle, so cardiac related to heart, and it is stripped, but the strips are, or the striations are not regular, they are irregular striations. मतलब एक तरतीब नहीं है। Here यहाँ पर देखिए ये skeletal muscle है, skeletal muscle fiber, तो यहाँ पर ये तरतीब के साथ धारियां मौजूद हैं, स्ट्राइएशंस मौजूद हैं, स्ट्रिप्स मौजूद हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, एक पूरा रेगुलर एक रिदमिक पैटर्न है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर भी आपको धारियां तो नजर आ रही हैं, 2 यहाँ पर, 3 इधर से, 1 यहाँ पर, सो स्ट्रिप्स तो हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस तो है, लेकिन ये स्ट्रिप्स इररेगुलर हैं। सो ये इन दोनों में चीजें कॉमन क्या है कि ये दोनों स्ट्रिप्ड हैं, दोनों स्ट्राइएटेड हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो कार्डियक मसल्स हैं they are irregularly stripped, while the skeletal muscles they have regular striations or regular strips. Clear? So ये चीज आपने इसमें कंपैरिजन में याद रखनी है। यहाँ पर देखिए रेगुलर स्ट्राइएशंस, यहाँ पर irregular striations मौजूद है। Now the second point is cell shape. What is according to the cell shape? So the smooth muscles they are spindle shaped. So here is the shape. Spindle ऐसी शेप को कहते हैं जो सेंटर से बल्की हो और एंड से टेपरिंग हो, पॉइंटेड हो, सेंटर से बल्की, एंड से टेपरिंग। So this is the shape of smooth muscle as you can visualize over here. And if we talk about the cardiac muscle, so they are branched, cylindrical होते हैं लेकिन branched, and they have intercalated disc. Dear students, intercalated disc, it is only and only the property of cardiac muscles. आंखें बंद करके अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरकलेटेड डिस्क, द आंसर विल बी कार्डियक मसल्स ओनली। सो यहाँ पर ये कार्डियक मसल है, इसे एक मसल फाइबर, सो ये एक सेल, या ये देखें ये इसकी ब्रांच, फिर ये दूसरा सेल, ठीक है, इस तरह से। अब ये इससे आगे भी एक सेल है और इसके नीचे भी एक सेल है, तो इन सेल्स के दरमियान में ये एक डिमार्केशन आपको नजर आ रही है, ये ब्लू कलर में ओवर हेयर, ये एक सेल एंड दिस इज अ सेल, ये एक सेल होगी ब्रांच और ये दूसरे, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, तो ये उनसी ब्लू कलर की जो डिमार्केशन नजर आ रही है इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स। इंटरकैलेटेड डिस्क, अच्छा एक तो इसकी पहचान है कि ब्रांच है, दूसरा इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क का मकसद क्या है? एक तो ये इन दो जो सेल्स हैं कार्डियोमायोसाइट्स उनको आपस में ज्वाइन करके रख रही है, उनको लिंक करके रख रही है, और दूसरा इट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो इंटरकैलेटेड डिस्क इट अलाउज transmission of impulse plus it attaches cardiomyocytes. Clear? And if we talk about the skeletal muscle, so they are cylindrical and as well as spindle shaped. ये दोनों शेप्स मौजूद है स्केलेटल की, सिलेंड्रिकल भी है जैसे देख सकते हैं सिलेंड्रिकल, और स्पिंडल शेप भी होते हैं मसल्स लाइक देम। नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इन केस ऑफ स्मूथ मसल यू कैन सी देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में एक न्यूक्लियस। इन केस ऑफ कार्डियोमायोसाइट
सो वन सेल, इसमें भी एक न्यूक्लियस, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस. सो one nucleus per cell. And if we talk about the skeletal muscle, so here is nucleus, here is nucleus, here is nucleus. So there are multiple nuclei. So many nuclei per cell. It is the property of skeletal muscle. And if we talk about the speed of contraction, the smooth muscles बहुत धीरे 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 move करते रहते हैं. You know, the hostrations and the peristaltic movements एक बहुत ही slow speed के साथ चल रही हैं. यानी कंपैरिजन की बात हो रही है. अगर कार्डियक मसल की बात करें तो एक स्टडी स्पीड के साथ, इंटरमीडिएट स्पीड के साथ वो पंप कर रहा है. 1 2 3 लाइक दिस. ठीक है, सो इंटरमीडिएट स्पीड है. बट एज फार एज स्केलेटल मसल आर कंसर्न, इनमें स्लो से लेकर के रैपिड, मतलब ये मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ से इतनी देर में यहाँ से ऐसे करके चल के जाऊँ, या मेरी जो मर्जी है कि मैं इसको यहाँ से जल्दी जल्दी चलूँ. ठीक है, मैं भाग भी सकता हूँ, मैं बहुत स्लो भी चल सकता हूँ, लाइक अ स्लॉथ. ठीक है, स्लॉथ द स्लोएस्ट एनिमल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. तो स्लो टू रैपिड, जितनी वो आपकी एबिलिटी है कि कितना तेज आप कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं उससे, तो जितना स्लो भी करवा सकते हैं और मैक्सिमम रैपिड भी करवा सकते हैं. सो नाउ द कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, ये तो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है? स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हो सकती है, स्ट्रेच से हो सकती है, मसल स्ट्रेच हो गया तो उससे भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है. नर्वस सिस्टम से कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, मतलब कि नर्व इंपल्स आ रही है, और सर्टेन हार्मोन्स दे आल्सो कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, द स्मूथ मसल्स. क्लियर? बट इफ यू टॉक अबाउट द कार्डियक मसल, दैट इज टोटल स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, so there is no intervention. And if you talk about the skeletal muscles, so they are totally controlled by the nervous system. मोटो न्यूरॉन से सिग्नल आएगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं. क्लियर? एंड if you talk about their functions, the smooth muscles, they control the movement of substances through hollow organs. Hollow organs or the visceral organs, इसमें एक और वर्ड भी यूज हो रहा है, visceral organs. तो पहले तो हॉलो ऑर्गन्स की बात सुन. हॉलो ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जिसके दरमियान में कोई स्पेस हो, जिसमें कोई कैविटी हो, उसे कहते हैं हॉलो. जैसे like my oral cavity, it has space. My digestive system, gastrointestinal system कहते हैं इसको, gut कहते हैं, digestive system कहते हैं. So it is hollow. ये hollow tube है from the mouth to the anus. ठीक है, total pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and at the end. So it is hollow. इसी तरह से like the ureters, like the kidney, like the bladder. Clear? So these are hollow organs. Like the other parts which have ducts, so they are known as hollow organs. तो उनमें से चीज़ों को मूव करवाना, सब्सटेंसेस को मूव करवाना, इसका कंट्रोल जो है वो स्मूथ मसल के पास है. जैसे पेरिस्टाल्सिस, आपने निगल तो लिया, स्वेलो तो कर लिया, जैसे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के पास पहुंचा, उसने इसको नीचे प्रेस किया और अलाउ किया, एंड नाउ हियर ऑटोमेटिकली the smooth muscles of the esophagus, it will push it down and down and down, forming wave of contraction followed by the wave of relaxation, which is called as peristalsis. और ये peristalsis यहाँ से शुरू होती है and it goes to the rectum. Clear? And visceral organs किसे कहते हैं? ऐसे organs जो body cavities में मौजूद हों, उन्हें visceral organs कहा जाता है. Like this is our chest cavity, this is our abdominal cavity, and a little bit down there is a pelvic cavity. Clear? तो इन cavities के अंदर जो organs होते हैं उनको कहा जाता है visceral organs. तो उनके अंदर भी जो substances की जो movement हुआ है उसका control जो है इस smooth muscle के जिम्मे होता है. और जहाँ तक बात करें function of cardiomyocyte की, cardiac muscles की, so there is only one and only function of cardiac muscles, that is the pumping of blood to the body. Clear? Or if you talk about the skeletal muscles, so it moves the skeleton. मेरा skeleton मेरी body के अंदर है, endoskeleton है, तो उसको move करवा रहा है the skeletal muscles. ठीक है, ये हमारे skeleton हड्डियों के साथ जो muscles attach है, ये हमारी हड्डियों को move करवाते हैं. So it moves the skeleton, means moves the organism or the parts of the body. Now if we talk about the control, so smooth muscles, total autonomic, means we have no control on them.
हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है. They are involuntary. They are involuntary. And if you talk about the cardiac muscles, the cardiomyocytes, they are total involuntary. They are innervated by the autonomic nervous system. Clear? इसी तरह से ये भी they are also innervated by the autonomic nervous system. And if we talk about the skeletal muscles, so these are the only muscles in our body which are voluntary. Most of the time they are voluntary. Means I can run, I can sleep, I can sit according to my will. I can write, I can drink according to my will. So this is under my control, voluntary control. Clear? ये मैं अपनी मर्जी से इनको मूव करवा सकता हूँ. Like I'm speaking to my at my own. Clear? अपनी मर्जी से. And if we talk about the location, so the smooth muscles, they are located in the blood vessels. Blood vessels में circular smooth muscles हैं, you know very well. GIT, the gastrointestinal tract और gut और our digestive system, ये सारे इसी के नाम हैं. और alimentary canal, ये भी इसी का नाम है. So इसके अंदर starting from the esophagus, you know very well कि वहाँ पर उसकी जो middle layer है, जिसको हम muscular layer कहते हैं, उसमें दो तरह के muscles, longitudinal muscles, outer longitudinal and inner circular muscles. So वहाँ पर मौजूद हैं GIT और में मौजूद हैं hollow organs की बात हुई, जैसे कि kidney, ureters and bladder. ठीक है, यहाँ पर भी smooth muscles ही मौजूद हैं. If we talk about the cardiac muscle, so they are present in your heart. लेकिन heart में कहाँ पर ये students, you know, आप पढ़ चुके हैं, they are present in the myocardium. They are present in myocardium. Heart की 3 layers होती हैं, ठीक है. उसकी जो वो heart की जो heart wall है वो 3 layers से बनी हुई है. The epicardium, myocardium and the endocardium. Clear? और इसके ऊपर फिर heart के ऊपर एक और बड़ी सी layer है जिसे हम कहते हैं the pericardium. So जो myocardium है middle layer जो काफ़ी thick होती है, उसके अंदर जो cells होते हैं, they are known as the cardiac muscles. अच्छा, इनके हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स. इनके यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना सेल न्यूक्लियस के साथ. सो 1 न्यूक्लियस पर सेल. लेकिन यहाँ पर इनके हार्ट के हवाले से द ओनली मसल, these are the only muscles which never ever get fatigue. ये हमारी बॉडी के वाहिद ऐसे मसल हैं, हार्ट के मसल, जो थकते नहीं हैं जब तक आपकी आखिरी सांस है. ठीक है, ये कभी भी थक नहीं सकते क्योंकि ये थक गए तो बंदा ऊपर. सो ओनली मसल्स विच गेट नेवर एवर गेट फटीग्ड. ये स्मूथ मसल्स भी फटीग हो जाते हैं, स्केलेटल मसल भी फटीग हो जाते हैं, लेकिन द कार्डियक मसल्स दे नेवर गेट फटीग. तो इसकी मायोकार्डियम के अंदर ये मौजूद है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्केलेटल मसल्स, so skeletal muscles, as I have told you, they are attached to a skeleton. तो skeleton हमारा पूरी बॉडी में एंडोस्केलेटन, और जहाँ जहाँ पे skeleton है वहाँ पर ये मसल अटैच है. इसके हवाले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूँ. हमारी बॉडी का सबसे छोटा मसल, the smallest muscle is stapedius, जो कि स्टेप्स के साथ अटैच्ड है. ठीक है, जो सबसे छोटी हड्डी है उसके साथ ही अटैच होता है. स्टेपिडियस, द स्मॉलेस्ट ह्यूमन मसल. और इसके हवाले से जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं उनमें एक तो हमारा ये मेस्टिकेटर मसल है, और हमारा डेल्टॉइड है, और हमारे जो थाई के मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हमें पावरफुल जो है वो मूवमेंट्स उनमें मूव करने में हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन these muscles. This is very important table. You have to understand this and memorize this. Now, dear students, there are few MCQs related to today's lecture. So hopefully you have understood all the lecture and you will be able to answer these very easily. So the commonality between smooth muscle and cardiac muscle is both are stripped, are voluntary, involuntary or cylindrical.
जी डियर स्टूडेंट्स, कार्डिक और स्मूथ मसल में क्या चीज कॉमन है? सो द आंसर इज बोथ ऑफ देम दे आर इनवॉलंटरी। क्लियर? ना तो दोनों स्ट्रिप्ड हैं, ना ही दोनों वॉलंटरी हैं, ना ही दोनों सिलिंड्रिकल हैं। क्लियर? द एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द कार्टिलेज इज कॉल्ड एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम और perichondrium or axchondrium. So the answer is perichondrium. The cells which secrete unmineralized ground substance are osteogenic cells, osteoblasts, osteocytes, or osteoclasts. So the correct answer is the osteoblasts. So they are the cells which secrete unmineralized ground substance into the bone matrix. Clear? And the cells that regulate the release of calcium from the bone to the blood are osteocytes. Clear? And the cells which develop into immature bone cells are, जी dear students, क्या आंसर है इसका? वो कौन से सेल्स हैं जो immature bone cells में डेवलप होते हैं? तो immature bone cells किनको कहते हैं? Osteoblast को. So अब इसको जरा मॉडिफाई करें. The cells which develop into osteoblast. So now you have got, it is osteogenic cells, the stem cells of the bones. The broad ends of the bones at the terminal portions are called diaphysis, epiphysis, hypophysis, or neurophysis. Dear students, so they are called epiphysis. Clear? जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने बोन, उससे मुतालिक जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन थी related to the types and also the layers of the bones, the compact bone and the spongy bone, and the red marrow and the yellow marrow. Then we have discussed the cartilage and its types, the fibrous cartilage, the elastic cartilage, and the hairline cartilage. And at the end, we have discussed the myology. We have started myology. And in myology, we have compared the three types of muscles, the smooth, cardiac, and the skeletal muscles. And hopefully, there will be no query. And if there is any query related to today's lecture, you can put your question in the comments box, and our subject specialist will answer you soon. So take care of yourself. Allah Hafiz.